Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are beginning with one of the most important subject in law, that is administrative law. And before going into administrative law, the basics of the subject and what are the evolution, origin, before going into that, we will discuss the most important topic out of which this subject has been emerged, and that is the principles of natural justice. Natural justice forms the foundation of fairness, equality, and transparency in administrative action. Basically, it protects the individuals against arbitrary exercise of power and ensures that every authority acts fairly and reasonably. Now, in this video, we'll understand the meaning, origin, basic principles, important case laws, judicial approach, and emerging trends related to natural justice in detail. So, watch the video till the end for a complete understanding of this crucial topic in administrative law. Now, you must be wondering that why we started with principles of natural justice and what is the meaning of principles of natural justice. See, principles of natural justice are the fundamental principles of fair procedure, and ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनका प्योरली काम ये है दैट दे विल इंश्योर fairness, they will ensure reasonableness, they will ensure justice, they will ensure equality and impartiality, right? So in this way we will be covering all these principles which protect individual against any arbitrary exercise of power by administrative authorities. Now, before going into the topic, let's just revise one thing, that there are three branches of governance, right? Legislative, executive, and judiciary. For legislative, the task is to make laws, and for executive it is to implement those laws made by legislature, and judiciary interprets those law. Now we are talking about administrative law. Administrative law deals with this wing of the governance, that is executive wing. The task is to implement the laws which are made by legislature, but what is checked is the actions of this branch, whether they are proper or whether they are arbitrary or have been unreasonable. So this is being checked by administrative law. This is the law which applies the check. So now see why I started with natural justice. The thing is, we have known about our basic laws, and in our laws, nowhere, even in our law of the land, nowhere it is mentioned the word natural justice. So that means natural justice is not any codified law, but it has been derived from somewhere. We'll see in the slides after this that it has been derived from some places, and the principles are completely based on the fairness, equity, and good conscience. तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है that is based on principles of natural justice, and doctrine of natural justice plays a crucial role in ensuring transparency and accountability in governance. And when it comes to governance, we are talking about all these three branches. Then comes our judiciary, that is Supreme Courts and High Courts, which have greatly expanded the scope of natural justice through judicial interpretations. So now moving ahead, I told you, I gave you the introduction of this video, and now moving ahead with the foundation, fairness as universal creed. This means if I talk about what is the meaning of natural justice, the meaning of natural justice is fairness in action.
The literal meaning of natural justice is fairness in action. This means कि it refers to कुछ ऐसे procedural safeguards हैं that checks that apply on administrative authorities, and these authorities must follow while making decisions affecting the rights of individual. तो basically इनका काम क्या है, they have to check. It is not any kind of modern invention, right? ये बहुत पहले से हमारे systems में already rooted थे, right? हमने बस नाम change किया है, या आप कह लो कि बस recognize किया है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है. So they are already the bedrock of civilized legal systems across the world and rooted in ancient traditions, रिफाइंड थ्रू सेंचुरीज ऑफ जुडिशियल विजडम. तो रिफाइन हो के अब एक वर्ड हम समझ गए हैं विच इज कॉल्ड एज नेचुरल जस्टिस, और जिसका मतलब है फेयरनेस इन एक्शन. बट ऐसा नहीं है ये कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये बहुत पहले से हमारे पुराने लॉज में, पुरानी जो एंशंट एजेंसीज थी उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट था, राइट? सो अब टॉकिंग अबाउट कि ये शुरू कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले है रोमन ओरिजिन. रोमन लॉ का कॉन्सेप्ट था, एंड दीज रोमन्स बिलीव्ड दैट कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फेयरनेस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शाइंस. मतलब देयर शुड बी एवरीथिंग विच इज completely fair without any partiality, unbiased, based on equity and based on good faith, that is good conscience. तो रोमन्स में एक था रोमन जस्ट नेचुरल. Roman just natural means the law which was followed by Romans, and it also has been derived from English common law. इंग्लिश कॉमन लॉ मीन्स कि यूके का जो, ब्रिटिश का जो सिस्टम्स है कॉमन लॉ के, कॉमन लॉ का सिस्टम भी यहाँ पे अप्लाई करता है. एंड द रीजन इज दे शेप मॉडर्न प्रोसीजरल फेयरनेस. दिस मीन्स एक तो रोमन का जस्ट नेचुरल विच इज फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शाइंस, एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश कॉमन लॉ विच इज बेस्ड अगेन ऑन फेयरनेस एंड गुड कॉन्शाइंस, where courts are responsible to use that uncodified law and sometimes their own interpretation to decide the cases. And when the cases are decided, जो cases का जो decision आया है that will be treated as a new law, जिसको हम बोलते हैं precedents. तो यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट होता था, एंड दिस वॉज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ से हमने शुरू किया रिकग्नाइज करना कि हाँ देयर इज समथिंग विच कैन बी कॉल्ड एज नेचुरल जस्टिस. एक डिक्शनरी है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, नेचुरल जस्टिस को वहाँ डिफाइन किया गया है दैट जस्टिस इज बेस्ड ऑन फेयरनेस, इक्विटी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट? नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स अगेन इट इज नॉट कोडिफाइड बट इट इज इनहेरेंट टू रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, operating as an implied standard in all adjudication. Rule of law means, see, there are 3 pointers in rule of law: supremacy of the law, equality before law, and predominance of legal spirit. This means सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, लॉ सबसे बड़ा है, नो वन इज अबव द लॉ, इवन किंग इज नॉट अबव द लॉ, तो लॉ विल बी सुप्रीम. इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि ठीक है, यू हैव टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, but when it comes to unequal you cannot treat them equally, so you have to treat them individually. Whatever the needs of that unequality is, you have to fulfill that, right? And legal spirit means that everywhere there is a legal spirit, that means there is a judicial spirit जिसका already presence है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी it will ensure कि fair hearing हो और justice दिया जाए. These three are the pointers of rule of law. ये भी हमारे ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी भी लॉज में अलग से मेंशन नहीं होगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट है दिस वाज गिवन बाय एवी डाइसी. इनका जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिवेल करता है हमारे हर एक लॉज में, प्लस हमारी जुडिशरी भी इस चीज़ को फॉलो करती है, दैट वाइल गिविंग द इंटरप्रिटेशंस इन ऑल द केसेस रूल ऑफ लॉ इज बीइंग टेकन इनटू केयर. इस चीज़ को ज़रूर फॉलो किया जाता है. आफ्टर दैट दे अप्लाई द लॉ वट एवर इज कोडिफाइड, और अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीज़ें चेकड होती हैं. नेक्स्ट कम्स इज इंडिविजुअल राइट्स. तो कोर पर्पस ऑफ
this natural justice is that it is protecting individual rights against the arbitrary state power and ensuring due process in administrative action. This means कि हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द मिस यूज, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है बिकॉज द पावर इज विद द स्टेट, तो देर इज द हाई चांस कि स्टेट अपनी पावर को मिस यूज कर सकता है। तो उस मिस यूज को रोकने के लिए इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कैसे, बिकॉज स्टैचूटरी बाउंड्रीज को अगर हम ना देखें तो ये हर जगह अप्लाई होता है, क्योंकि देखो ये जो लॉज है ये ह्यूमंस पे अप्लाई हो रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस कोई ना कोई लॉ है या कोई ना कोई अथॉरिटी है जो उनके ऊपर चेक, जो उनको एक तरह से मैनेज कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। सो उस गवर्नेंस में कहीं पर भी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी अल्ट्रा वाइट्स ना चली जाएं, अपनी पावर का मिस यूज़ करना ना शुरू कर दें, इसलिए हम उनके ऊपर भी अ काइंड ऑफ एक चेक लगा देते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से शुरू होकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तक आता है। सो नाउ अगर हम बाउंड्रीज कंट्रीज की ना देखें तो ऑलमोस्ट सेम सिस्टम है, राइट। तो उन अथॉरिटीज़ के ऊपर एक तरह का प्रिवेंशन लगाना दैट दे डू नॉट मिस यूज देयर पावर, और हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्शन देना, ये हर एक कंट्री का काम है। इसीलिए जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है एंड अप्लाइज इवन व्हेन नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड बाय लेजिस्लेशन। मतलब अगर किसी लॉ ने नहीं भी बोला है कि इसको अप्लाई करना है, फिर भी ये ऑटो में इट इज़ प्रेजेंट देयर। और इसका ऑटो में प्रेजेंट रहना क्या है, बिकॉज this particular thing is a living principle and it demands fairness, accountability and transparency in every era and context। तो चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे किसी भी जगह की बात कर लो, चाहे किसी भी केस की बात कर लो, लॉज तो बाद में आएंगे, बट बिफोर कमिंग टू द लॉज what should be most important is कि there should be fairness, there should be proper hearing in all the cases, all the things which are required in that cases। तो इस वजह से हम इस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इतना क्रूशियल मानते हैं इन आर लॉज। मूविंग फॉरवर्ड टू टू पिलर्स ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। जब हम बात कर रहे हैं कि हम किसी को जस्टिस दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव द जस्टिस इन एडजुडिकेटरी प्रोसेसेस, यानी कोर्ट में केस चल रहा है। अब वहाँ पे अगर हमें प्रोसीजरल फेयरनेस प्रोवाइड करनी है तो देर आर टू थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड। तो ये दो चीज़ें हैं जो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में टू मैगजिम्स अप्लाई करेंगी विच आर गवर्निंग द फेयर एडजुडिकेटरी प्रोसेस। और वो दो मैगजिम्स क्या हैं? फर्स्ट इज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, दिस मीन्स रूल अगेंस्ट बायस। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ का लिटरल मीनिंग है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज, और इसी को हम रूल अगेंस्ट बायस कहते हैं। बायस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान का एक इंक्लिनेशन है, बायस कंप्लीटली मीन्स इंक्लिनेशन, और अगर आपका इंक्लिनेशन होगा तो दैट मीन्स जस्टिस सर्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप इंक्लाइंड हो गए। सो उसी इंक्लिनेशन के लिए रूल अगेंस्ट, यानी इंक्लिनेशन के अगेंस्ट बात हो रही है, जिससे कि बायसनेस को ख़त्म किया जा सके और डिसीजन मेकिंग में इम्पार्शियलिटी हो, राइट। सो एवरी डिसीजन मेकर मस्ट अप्रोच द मैटर विद एन ओपन माइंड, free from personal interest, predisposition that could compromise impartiality। This means कि Latin maxim no one should be a judge in his own cause, ये प्रिंसिपल आता है जिससे कि बायसनेस को की एब्सेंस कर रहे हैं हम और इम्पार्शियलिटी को प्रमोट कर रहे हैं while the decision is being made to provide the complete justice to the aggrieved party। और अगर किसी पर्सन का कोई इंटरेस्ट है उस केस में तो दैट पर्सन कैन नॉट डिसाइड दैट केस। ये इंश्योर करता है फर्स्ट मैगजिम दैट इज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। सेकेंड आता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम बताता है राइट टू फेयर हियरिंग। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज हियर द अदर साइड, दिस मीन्स नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। यानी अगर मान लो कोई पार्टीज आई तो ऐसा नहीं हम एक ही बात सुन के डिसीजन दे देंगे, हमें दूसरे को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है टू स्पीक, टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स,
to get the opportunity of hearing, to do the things which are required for a party to do. सो उस इस दिस मीन्स कि हम एक साइड का डिसीजन, एक साइड का स्टोरी सुन के डिसीजन नहीं देंगे, हमें दोनों साइड्स को प्रॉपरली सुनना है. तो एवरी पर्सन अफेक्टेड बाय द डिसीजन must be given adequate notice, a reasonable opportunity to present their case, and a chance to respond to every evidence against them. These principles include, ऐसे मान लो कि कुछ चार्जेस लगे, उसका नोटिस देना, उन चार्जेस के लिए उसकी हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देना, प्लस जो एविडेंसेस आए हैं उस पे आंसर करना, प्लस टू गिव देम द राइट टू प्रेजेंट देयर ओन एविडेंसेस ऑल्सो, क्रॉस एग्जामिन का राइट देना, लीगल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखना, एंड स्पीकिंग ऑर्डर्स. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच इंश्योर दैट द पर्सन इज हर्ड, एंड दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू गिव द डिसीजन. तो आपने दोनों चीज़ों का, दोनों लोगों को सुनना इंपॉर्टेंट है. और वो जो सुनने के लिए व्हाट वी से इज कि हमें सबसे पहला तो नोटिस दे दिया, नोटिस में पर्सन को बता दिया कि आपके चार्जेस क्या हैं, ग्राउंड ऑफ एक्शन क्या है, टाइम और प्लेस क्या है आपकी हियरिंग का. अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस में आपने बता दिया कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन. एविडेंस के बारे में उस पर्सन को पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, और ही शुड गेट द चांस टू respond to those evidences. Cross examination required होता है when they are allowed, where it is necessary for fairness, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का भी चांस देते हैं. एंड रीजन डिसीजंस आर ऑल्सो अटैच्ड, मतलब जो डिसीजंस आए हैं, डिसीजन विद अटैच्ड विद द रीजंस. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि अगर कोर्ट से डिसीजन भी आ रहा है तो उस डिसीजन के साथ उनकी रीजनिंग भी आए, सो दैट द पर्सन कुड गेट द क्लैरिटी कि किस बेसिस पे ये चीज़ें, ये जो रीज़न, किस बेसिस पे ये जो डिसीजन है वो दिया गया है. इसको जो मॉडर्न कोर्ट्स है वो बोलती है रीज़न इज़ द सोल ऑफ जस्टिस, मतलब अथॉरिटीज़ को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डिसीजन का रीज़न, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कंटिन्यू रहे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पिलर, विच इज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज वी से दैट रीजन डिसीजंस. रीजन डिसीजंस को दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड पिलर, ये अभी अटैच कर दिया गया है इन दिस मॉडर्न टाइम्स. और रीजन ऑर्डर्स का मतलब है दैट द अथॉरिटीज मस्ट प्रोवाइड रीजन फॉर देयर जजमेंट्स. सो मॉडर्न एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये स्पीकिंग ऑर्डर्स है, ये क्या होते हैं, कोई भी डिसीजन है, देखो वो किसी ना किसी इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करेगा, और जब वो अफेक्ट कर रहा है तो दोज मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर्स. एंड स्पीकिंग ऑर्डर्स मीन्स रिटन जजमेंट्स जो उस डिसीजन या उस जो भी डिसीजन आया है उसके रीजनिंग को बताएंगे, उसका जो आउटकम आया है उसके बिहाइंड में क्या पूरी सोच थी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे. अब ये करते क्यों हैं? The reason is to mention the transparency and accountability. They ensure that कि जो उनके रीज़न डिसीजन देने का जो रीज़न है वो रेशनल रहे, पब्लिक ट्रस्ट में रहे, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग हो, एंड सिटीजन्स आर एंटाइटल टू अंडरस्टैंड वाई अ डिसीजन वॉज मेड अगेंस्ट देम. जो अग्रीव पार्टी है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन हो गया, उसको भी तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ कोर्ट ने करी है तो क्यों करी है, तो इसका रीज़न यहाँ पे अटैच किया जाता है. प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरीनेस. अब देखो किसी डिसीजन के साथ अगर आपने रीज़न अटैच कर दिया कि आपने डिसीजन क्यों लिया है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो चीज़ों में एक चॉइस करो, तो वो एक चॉइस आपने क्यों करी, अगर मैं ये पूछ दूं तो आप डिसीजन लेने के पहले अपना ये आंसर तैयार कर लोगे कि अगर मैं ये चूज़ करूँ तो मैं बोलूँगा क्या या बोलूँगी क्या. तो काइंड ऑफ कि आपका मिस यूज़ या जो चांसेस है मिस यूज़ के वो कम हो जाएंगे. आपकी जो आर्बिट्रेरीनेस है, या कह लो अपनी पावर से बियॉन्ड जाके अगर कुछ करने जा भी रहोगे तो एक स्टेप बैक हो जाओगे, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड द रीज़न फॉर योर डिसीजन. तो इसीलिए it prevents the arbitrariness by documenting the logic behind that what judgment you have made, what is the reasoning or logic behind that which you have applied, and the logic makes that decision meaningful. And by this meaning, judicial review and other capricious exercise of power can apply the check on the decision which has been given by the कोर्ट्स और अथॉरिटीज़. सो आई होप ये जो रीजन्ड ऑर्डर्स हैं
इट इज मतलब अ बिट क्लियर टू यू। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में कि ऑडी ऑर्डरम पार्टम या रीजनड ऑर्डर्स, इसमें एक फ्लो चार्ट के तौर पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पहला तो हो गया नोटिस, कि एवरी पर्सन जो भी अफेक्टेड है उस पर्टिकुलर केस में पार्टी है, दे मस्ट नो कि उनके अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस हैं, ग्राउंड ऑफ एक्शन क्या क्या होगा, और उनकी हियरिंग कब होनी है, या उनका केस पहली बार कब चलने वाला है। तो इस चीज़ की नोटिस उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। हियरिंग मीन्स एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि अगर आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं तो यू कैन आर्ग्यू फॉर द सेम एंड you can yourself present evidences which can be helpful for them, and always a reasoned order explaining a decisions basis must be presented। तो ये कोर्ट्स के लिए या जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनके लिए होता है टू अटैच द रीजन विद देयर डिसीजन, तो उसको बोलेंगे रीजनड ऑर्डर, और वो बताएगा दैट व्हाट वाज द ग्राउंड ऑफ दैट डिसीजन। रिव्यू मीन्स अगर मान लो आपका डिसीजन आया, आपने रीजन भी अटैच कर दिया, बट मे बी शायद पार्टी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अब अपील में जाएगी। अगर अपील में जाती है तो देयर इज अ रिव्यू थिंग, जो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है फॉर मीनिंगफुल एपेलेट स्क्रूटनी। तो रिव्यू अप्लाई करवाया जाएगा फ्रॉम द कोर्ट्स विच विल check that whether the decision was right or not। The requirement of reasoned order has transformed administrative law, making every authority answerable for decision in writing। This means वही I told you कि अगर मैं दो choices दूँ और आपसे पूछूं कि आप मुझे इनमें से एक सेलेक्ट करके बताओ, आप सेलेक्ट तो करोगे, बट बिकॉज अ थिंग इज अटैच्ड कि रीजन देना है, तो आप रीजन पहले बना लोगे कि मैं रीजन क्या दूंगा, एंड इट शुड साउंड लॉजिकल, राइट। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, द कंप्लीट जस्टिस व्हेन इट इज़ अ रियल लाइफ थिंग, राइट। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे एक जस्टिस की बात हो रही है, तो वो जो मतलब एक ग्रेविटी है दैट इज़ अ बिट मोर। तो वो जो रीजन डिसीजंस हैं उनका सोचना, उनका प्रेजेंट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी। इसमें सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस गोल्डन ट्राइंगल एक केस था, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था कि मनेका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको इम्पाउंड कर लिया गया था विदाउट एनी प्रॉपर हियरिंग, और जो कोर्ट है उसने ये जजमेंट दिया। अब इन्होंने अपने ग्राउंड्स इश्यूज रेस किए दैट मेरा आर्टिकल ना, और वो जो पासपोर्ट था जब लिया गया था तो उनको एक ट्रैवल से रोक दिया गया था, पासपोर्ट भी सीज कर लिया गया। तो इन्होंने कोर्ट में एक रिट फाइल करी। उस रिट में उन्होंने लिखा कि मेरा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 इन्फ्रिंज किया है। 14 क्योंकि इक्वालिटी, 19 बिकॉज ऑफ कि उनका जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे थे उस राइट को नहीं प्रोवाइड किया, उनको स्पीच की और एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एंड 21 उनका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बेसिकली पर्सनल लिबर्टी पे क्वेश्चन मार्क लगा। और इशू ये बना दैट वेदर दिस इज रीजनेबल इनफ, क्या ये सही है। तो जजमेंट आया, जजमेंट वॉज दिस कि कोर्ट हेल्ड दैट कि प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, एंड यहीं से एक गोल्डन ट्राइंगल क्रिएट हुआ बिटवीन दीज थ्री आर्टिकल्स 19, 21 एंड 14। 14 क्या कह रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिटरी एंड अप्लाइड यूनिफॉर्मली। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो अलग अलग टर्म्स थे। ये जब मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाया होगा तो बताया होगा, एक यूएस से लिया गया है, एक यूके से लिया गया है। तो दोनों टर्म्स में डिफरेंस ये है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब कि जो लॉज हमने बना रखे उनको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यू हैव टू इंश्योर द इक्वालिटी कि वो लोगों तक पहुंचे। तो इन दैट केस जो प्रोसीजर है दैट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल, वो किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि लॉ एक ही है एंड इट अप्लाइज फॉर ऑल। हर पर्सन को सेम तरह से देखता है, एवरी पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ इज इक्वल। तो उसी हिसाब से इक्वालिटी को अप्लाई करना है। 19 कहता है लिबर्टी, मेरी स्पीच की लिबर्टी है, असेंबली की लिबर्टी है, मूवमेंट की लिबर्टी है। तो अगर आप किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड प्रोसीजरल फेयरनेस में पास होना चाहिए। यानी अगर मान लो कोई
हमारा आर्टिकल 19 है वो हमारा राइट है, बट वहीं पे इसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी अटैच्ड हैं। तो अगर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अटैच्ड है तो कोई बात नहीं, बट इसके अलावा जितने भी इंस्टेंसेस होंगे हमें ये वाला आर्टिकल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 21 दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इनको यहाँ पे प्रॉपर हियरिंग भी नहीं हुई और यहाँ पे इनके साथ उनका मूवमेंट भी रोका गया, तो 19 भी इन्फ्रिंज हो गया। 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया और कोर्ट ने आफ्टर उसका जो भी ट्रायल चला, केस चला, उसमें जितने भी एविडेंसेस थे सब उसके अगेंस्ट थे और ये प्रूव हो गया कि उसने ये क्राइम किया है, तो अब कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकती है। मान लो उसे इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हुआ 3 साल का, तो अब 3 साल के लिए तो वो कस्टडी में रहेगा ना। अब इस कस्टडी में रहने के लिए वो बाहर जाके केस फाइल कर दे कि मेरा पर्सनल लिबर्टी छीन लिया, मेरा मूवी जाने का मन था मुझे जाने नहीं दिया, मुझे रेस्टोरेंट में खाने का मन था खाने नहीं दिया। सो अब देखो प्रोसीजर स्टैब्लिश क्या है, गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, गलती करी प्रूव हुई पनिशमेंट मिली 3 इयर्स की। अब उस चीज के लिए, उस कन्फाइनमेंट के लिए आप कोई रिट नहीं फाइल कर सकते। सो दिस इज द फेयर प्रोसीजर, दिस इज द जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू विल बी लाइबल फॉर दैट रॉन्ग डूइंग। सो इन दैट केस आप वहां पे अपना ये राइट यूज नहीं करोगे। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब लॉ जो प्रोसीजर स्टैब्लिश कर रहा है उसी उसी प्रोसीजर से चलना है, एंड दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर, शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल। नाउ कम्स जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा गोल्डन ट्राइंगल और ये अ काइंड ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ही है। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हमेशा से फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कंसिस्टेंट रही है दैट इट शुड बी प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एंड लिबर्टी, स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोसीजर्स दैट आर ऑप्रेसिव एंड अनफेयर। कुछ अगर ऐसे प्रोसीजर हैं जो बायस्ड हैं, दोज आर नॉट इम्पार्शियल, उस केस में हमेशा जुडिशरी काम करती है टू गिव द इंटरप्रिटेशन दैट वेदर दिस एक्शन इज राइट और रॉन्ग। तो ये जो थर्ड प्रिंसिपल है, this is very important in this principles of natural justice, which is providing you the fair and reasonable and non oppressive प्रोसीजर्स। तो एक गोल्डन ट्राइंगल तब से आफ्टर दिस मनेका गांधी केस ये गोल्डन ट्राइंगल फॉर एवर बन गया, दैट दिस 14, 19 एंड 21 फॉर्म अ ट्राइंगल। और अगर एक भी राइट इन्फ्रिंज होता है दैट मीन्स द कोर वैल्यू ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड। Okay, moving ahead. अच्छा, if I give you a task, that is SN Mukherjee वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रीजनड जो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, बट आई वॉन्ट यू टू गो एंड चेक द बेसिक summary of the facts and what was held. And I'm giving you the hint that in this case the court held that recording reasons is a very essential part of natural justice. So I hope from this part, this slide, you must be getting the idea of it. Next, coming on to the case, which is Mohinder Singh Gill versus Chief Election Commission. She is Chief Election Commissioner. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसाइड हुआ था। इसमें जो बेंच थी दैट वाज ऑफ VR कृष्णन अय्यर एंड PN भगवती एंड अदर्स वर देयर। अच्छा, हुआ क्या इस केस में? दिस इज द वेरी लैंडमार्क जजमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल्सो, एंड इट एक्सपैंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इक्वालिटी में आर्टिकल 14 का थोड़ा स्कोप और एक्सपैंड कर दिया था, और इलेक्शन कमीशन की पावर्स को भी एक्सपैंड किया था। तो जजमेंट में स्टैब्लिश क्या किया गया दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मस्ट एक्ट, मतलब जब भी उन्हें एक्ट करना है दे मस्ट एक्ट फेयरली, रीजनेबली एंड अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस। तो यहीं पे लैंडमार्क रूलिंग आ गई कि guide courts in evaluating that procedures meet the constitutional threshold of fairness and reasonableness। तो हमेशा natural justice continue करना है, fairness और reasonableness always attached रहेगी। और इसका एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है दैट एन ऑर्डर मस्ट स्टैंड और फॉल ऑन द रीजंस कंटेन्ड इन द ऑर्डर इटसेल्फ। दैट मीन्स कि आपके जो रीज़न है
फॉर दैट, या कह लो जो लॉजिक है फॉर दैट डिसीजन, दोज मस्ट ऑलवेज स्टैंड और फॉल फॉर द ऑर्डर। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में इलेक्शंस हुए थे इन फिरोजपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पंजाब। पंजाब में इलेक्शंस हुए थे। इन दैट इलेक्शंस उस टाइम पे वॉयलेशन बहुत था, बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी, और बहुत सारी इरेगुलरिटीज उस इलेक्शन में हुई थी एट सेवरल पोलिंग स्टेशंस। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसने एंटायर इलेक्शन को कैंसिल कर दिया, और उसके पास ऑफ कोर्स पावर है जो इलेक्शन लॉ से उसको मिली है कि वो इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। उसने अपनी पावर यूज़ की और इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। यहीं पे मोहिंदर सिंह गिल एक पर्सन थे जिन्होंने चैलेंज किया ये डिसीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बोला कि ये जो कैंसिलेशन है दैट वाज आर्बिट्ररी इन नेचर, एंड इसके लिए कोई हियरिंग प्रोवाइड नहीं की बिफोर कैंसलिंग द इलेक्शन। एंड देखा जाए तो दिस ऑर्डर वॉयलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इशू क्या क्या आया? पहला इशू आया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग क्या ये इलेक्शन कमीशन पे अप्लाई नहीं होते, या फिर वेदर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इसको क्या बाद में जस्टिफाई किया जा सकता है बाय गिविंग एडिशनल रीजंस नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कैंसिल द इलेक्शन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब उन्होंने बोला अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हम कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे जो चीफ इलेक्शन ने किया वो सही किया। अब पर कोर्ट ने यह भी बोला कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो भी प्रिंसिपल्स है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड नेचुरल जस्टिस, हमेशा हमें उनका ध्यान ज़रूर रखना है। तो यानी जो भी एक्शन कर रहे हो एक्शन कर सकते हो, फेयरनेस इंश्योर होनी चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए, अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिशनरी पावर भी अगर है तो वो भी फेयर होनी चाहिए, एंड जो हमारे नेचुरल जस्टिस का स्कोप है वो एक्सपैंडेड रहना चाहिए। और वो तभी एक्सपैंड होगा जब हम आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है उसका जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है उस तक अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तक को पहुंचा दें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर किसी भी राइट्स को अफेक्ट करते हैं दैट मीन्स दे मस्ट बी फॉलोइंग द फेयरनेस प्रोसीजर, एंड एट एवरी टाइम ऑर्डर मस्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर मान लो कोई स्टैट्यूटरी फंक्शनरी है जो कोई ऑर्डर पास कर रही है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो इसी चीज़ पे जज की जाएगी कि उसमें रीज़न क्या अटैच किया है, आपने लॉजिक क्या लगाया है। अथॉरिटीज़ बाद में इस चीज़ को इम्प्रूव या डिफेंड नहीं कर सकते बाय एडिंग न्यू रीजंस और समथिंग थ्रू एफिडेविट्स और सम आर्ग्यूमेंट्स। सो उसी टाइम पे जब आप डिसीजन दे रहे हो यू हैव टू गिव द रीज़न। इसी को हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर्स। और इससे होगा क्या, जो जजमेंट है उसके रीजंस विल मोर बी स्ट्रेस्ड ऑन ensuring transparency, preventing arbitrariness and facilitate the judicial review। अगर कोई नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मूविंग अहेड विद डिटेक्टिंग बायस बियॉन्ड स्पाइट एंड इल विल। अच्छा, अब आते हैं हम बायसनेस पे। बायसनेस आएगी जो अभी हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस, दैट मीन्स नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ में एक केस है दैट इज ए.के. कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इन शॉर्ट आई टेल यू हुआ क्या था। एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक एग्ज़ाम होना था उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हायर लेवल पे था, और इसमें दैट पर्सन वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट एग्ज़ाम, और उस इंटरव्यू में उसे अपीयर होना था। बट जो सिलेक्शन बोर्ड था उस सिलेक्शन बोर्ड में भी वो मेंबर था, जो कह लो कैंडिडेट आया सिलेक्शन के लिए एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ सिलेक्शन बोर्ड मेंबर। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला दैट अगर ये कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है ये अपने आप में ही नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट बी द जज इन हिज ओन कॉज। यानी अगर अभी वो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन होगा जो दूसरे मेंबर्स बैठे हैं और उसका सिलेक्शन तो पक्का है, वो चाहे उसका जैसा भी इंटरव्यू हुआ हो, ड्यू टू दैट इंक्लिनेशन, ड्यू टू दैट बायसनेस उसका पार्टिसिपेशन है तो उसका सिलेक्शन तो होना ही है। इसी चीज़ को बस रोकना था। जो सिग्निफिकेंस है इस केस का वो ये है दैट इट
डिस्टिंक्टेड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, इस चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया एंड नेचुरल जस्टिस बिकेम एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अब बात करते हैं बाइसनेस की। बाइसनेस का मतलब जब किसी पर्सन को कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस केस में, तो हम उस पर्सन को वो केस डिसाइड करने के लिए नहीं देंगे। इसमें देर आर सर्टेन टाइप्स। Biasness in adjudication is rarely overt. Courts have developed sophisticated framework for identified both actual and apparent bias, recognizing that appearance of unfairness can be damaging as the reality. अगर देखो कहीं पे भी अगर आपका किसी भी डिसीजन में पहले से ही इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वन साइड, तो आपका जो जस्टिस आप डिलीवर करोगे वो प्रॉपर 100% नहीं होगा, क्योंकि बायसनेस अटैच्ड है एंड यू आर ह्यूमन ओनली। तो ह्यूमन बिहेवियर है, जिधर इंक्लिनेशन उधर डिसीजन। तो अब ये जो टाइप्स ऑफ बायसनेस है, ये कौन कौन से बायसनेस रिकग्नाइज्ड है बाय कोर्ट्स। पहला आता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मीन्स जहाँ अथॉरिटी का अपना किसी भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप या हॉस्टिलिटी हो। तो डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन है, आप उस पार्टी को डायरेक्टली जानते हो या डायरेक्टली आपका कुछ उससे रिलेशन बन रहा है, या हॉस्टिलिटी है, दैट मीन्स आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच्ड है इस मैटर में। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल अटैच्ड है अगर इंटरेस्ट, तो वो पेक्यूनरी बायस हो जाएगा। थर्ड है ऑफिशियल बायस। ऑफिशियल बायस मतलब आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, बायसनेस ड्यू टू डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट, सो दैट विल बी ऑफिशियल बायस। एंड एपरेंट बायस का मतलब होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट, आपके सामने है, एंड दैट इज अ रीजनेबल परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस इवन विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल प्रेजुडिस। तो एकदम सामने अगर कोई चीज़ सपोर्टिंग में दिख रही है तो दैट इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट। एंड इसी में एक आता है सब्जेक्ट मैटर बायस। दैट मीन्स अथॉरिटी हैज़ प्रायर इन्वॉल्वमेंट इन द इशू। पहले से ही इस अथॉरिटी का उस इशू पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रखा था, तो अब वैसे ही केस आ गया, सब्जेक्ट मैटर बायस हो जाएगा, वो उसी साइड जाएगा जहाँ पे उसका इंक्लिनेशन है। सो दिस मीन्स कि कोर्ट कभी भी पूछ सकती है डिसीजन मेकर से, कभी भी, इट मे बी बियॉन्ड सस्पिशन ऑफ अनफेयरनेस, वो कभी भी पूछ सकती है दैट ये जो आपने जो भी जजमेंट लिया है, ये जजमेंट एब्सेंस ऑफ ओपन माइंड में हुआ है, या फिर आपने बस अपने मैलिस को डॉक्यूमेंट किया, यानी आपने अपना जो इंटेंशन था विच वॉज मैलाफाइड उस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। एंड बायस कवर्स रियल डेंजर ऑफ अनफेयरनेस, नॉट मेरली पर्सनल स्पिट और इल विल। दिस मीन्स कि आप रियल वर्ल्ड में जस्टिस दे रहे हो, रियल वर्ल्ड में जस्टिस देते टाइम अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जस्टिस प्रॉपरली सर्व नहीं हो पाएगा। तो देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, जहाँ हम इन्हें इतनी पावर देते हैं कि ये अपनी पावर्स को यूज़ करके हमारे जो लॉज हैं उनको प्रॉपर इंटरप्रेट करें और हमारी जो पार्टीज़ हैं उनको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एडजुडिकेशन। एमर्जिंग ट्रेंड्स में बेसिकली जो हमारी करंट चीज़ें हैं, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वो कैसे इस डॉक्ट्रिन को और एक्सपैंड करता है। तो पहला हो गया हमारा आज के टाइम के हिसाब से जीएसटी एडजुडिकेशन। जीएसटी एडजुडिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है टू प्रिवेंट आर्बिटरी टैक्स डिमांड्स, और टैक्स पेयर्स को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू रिस्पॉन्ड बिफोर एडवर्स ऑर्डर्स आर पास्ड। तो एक तरह से प्रिवेंशन है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, और इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं, बाय आस्किंग the taxpayers to respond properly to get that time and preventing the arbitrary tax demands which could be asked by the authorities. क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, जहाँ पे हम कुछ बॉडीज़ को, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम स्टैचूट से क्रिएट करते हैं, उनके पास हम लाइसेंसिंग डिसीजंस दे देते हैं, रेगुलेटरी एक्शंस देने की पावर देते हैं, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को भी चलाने की पावर दे देते हैं। एंड थ्रू दिस स्ट्रिक्ट नेचुरल जस्टिस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। तो अब जो भी पर्सन है अगर वो जजमेंट दे भी रहा है तो बिहाइंड में उसके ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन दैट केस person will be like he will require to fulfill the whatever the case is with full fairness and with full, you can say, legitimate consideration, or you can say that with proper and 100% justice will be ensured. Next आता है mitigating circumstances.